সুধী দর্শক নমস্কার, ডিডব্লিউ বাংলা ভাষার ফেসবুক লাইভে আপনাদের স্বাগত। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি কৃষক বিক্ষোভের মাঝখানে। দিল্লি উত্তরপ্রদেশ যে সীমানা, সেই গাজীপুরের কাছে এই জায়গায় বেশ কয়েকদিন ধরে কৃষকরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং বিক্ষোভরত কৃষকদের আমি ডেকে নেব, কথা বলবো তাদের সঙ্গে, জেনে নেব তাদের দাবি এবং আমরা জানবো যে কোন অবস্থায় কিভাবে তারা এই বিক্ষোভটা চালাচ্ছেন এবং তারা এই বিক্ষোভটা কতদিন চালাবেন এবং যতদিন দাবি পূরণ না হচ্ছে ততদিনই কি এখানে বসে থাকবেন। এই সমস্ত কথাগুলো নিয়ে আমরা, এই সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলবো। কারণ তাদের যে আন্দোলনটা, এটা মূলত মোদী সরকারের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে। এই কৃষি আইনটা কিছুদিন আগে সংসদে পাশ হয়েছে, রাষ্ট্রপতি সই করেছেন, তারপরে তা চালু হয়েছে। সেটা নিয়ে তাদের প্রবল আপত্তি, তারা মনে করছেন এতে কৃষকদের সর্বনাশ হবে। আমরা সেই কথাগুলো তাদের মুখ থেকে শুনবো আর জেনে নেব আন্দোলনের গতি প্রকৃতি। তার আগে আমার সঙ্গে ক্যামেরার পেছনে রয়েছেন আমার সহকর্মী সমন্তক। একটু বলবো যে পাশে কৃষকদের এখন খাচ্ছেন, তারা খাবার দাবার সমস্ত কিছু নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে এসছেন। এরা যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তারা এসছেন রামপুর থেকে, সমস্ত খাবার দাবার নিজেরা খাচ্ছেন। এমনকি কালকে যখন সরকারের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল কৃষকদের, তখন তারা সরকারের জল পর্যন্ত পান করেননি, তারা চাও খাননি, তারা খাবার খাননি, সমস্ত কিছু তারা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে এসছেন, নিজেদের দমে তারা এই আন্দোলনটা করছেন। भाई साहब, आप कहाँ से आए, कितना दिन से ये संघर्ष कर रहे हैं? हम लोग पिछले 3-4 महीनों से संघर्ष में लगे हुए हैं और दिल्ली में हम लोग पिछले 6 दिनों से हैं। पहले 4 दिन हम लोग बुरारी का मैदान है, जहां पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने हमें कहा था कि जो संगठन हमारे बुरारी मैदान में आएंगे, हमारी गवर्नमेंट उनसे बात करेगी या उन्हें बातचीत के लिए बुलाएगी। हम लोग 4 दिन वहां बैठे रहे। इन लोगों ने यूपी के किसी या उत्तरांचल के किसी संगठन को या अन्य स्टेट के किसी संगठन को ना बुलाकर सिर्फ हरियाणा और पंजाब के जो 25 या 25 के आसपास संगठन थे उन्हें कॉल किया। हम लोगों को बिल्कुल जैसे 2 स्टेट पूरे देश में से सिर्फ 2 स्टेट के जो हमारे यूनियन थे उनको बुलाए और हमारे बाकी पूरे देश को अलग कर दिया, उनकी अनदेखी किया गया। और जबकि इस बिल का असर हमारे देश के पूरे देश के किसानों पर और जितने भी हमारे लोग हैं, मजदूर हैं या और भोक्ता हैं, जो खाने से रिलेटेड कुछ भी है, जो खाते हैं पीते हैं, खेती से जो उपज पैदा होती है, जो भी इसका उपभोग करने वाले कंज्यूमर हैं, उन पे सब पे इसका असर पड़ने वाला। हम इस विषय पे आ रहे हैं। উনি যেটা বলছেন যে গত 6 দিন ধরে তারা এই দিল্লির সীমান্তে আছেন। প্রথমে গেছিলেন বুরারিতে, কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন বুরারিতে যেতে তারা কৃষকদের কথা শুনবেন, কিন্তু সেখানে কেউ কথা শোনেননি। তখন তারা এই দিল্লির সীমানার এই জায়গায় এসে অবস্থান করছেন এবং তাদের যে মূল যে রাগ ক্ষোভ, তাদের শঙ্কা, সেটা পুরোপুরি কৃষক বিলটা, যে আইনটা, কৃষক আইন পাশ হয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পেছনে এটা এখন নিরন্তর একটা জনসভা চলছে, সেখানে একের পর এক নেতা কৃষক ইউনিয়নের তারা কথা বলছেন, তারা বিরোধিতা করছেন। যেটা একটু আগে উনি বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে সরকার যে আলোচনায় ডেকেছিল শুধু পাঞ্জাব আর হরিয়ানার কৃষকদের, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড সহ দেশের বাকি এলাকার কৃষকদের ডাকা হয়নি। অর্থাৎ কৃষকদের আন্দোলনের মধ্যে একটা ভাগ, একটা বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছিল। তো সেইটারও ওরা প্রতিবাদ করছেন এবং তারা বলছেন যে তারা অবস্থান বিক্ষোভ করবেন। আমরা भाई साहब आप थोड़ा इधर आइएगा। ये जो कानून जो पास हुआ है इसका खिलाफ आप लोग है, क्यों, क्या क्या आपका बुरा लग रहा है कानून में? इसमें पहली चीज फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि भाई ये बिल उनके फायदे में या नुकसान में है। कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई जिसको बीच में साथ में लेके ये बिल तैयार किए गए हों। ठीक है जी। इसमें खामियां क्या हैं? इसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है किसी भी बिल में कि भाई एमएसपी रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है, ये वर्बली कह रहे हैं एमएसपी है और रहेगी, लेकिन हमें इन पे विश्वास नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ये कहते हैं ये अपना जो डिस्प्यूट है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई डिस्प्यूट होता है इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पे ले कॉरपोरेट के साथ, तो
तो ये अपना जो डिस्प्यूट है वो एसडीएम और डीएम तक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक सीमित रहेगा। वो नहीं, हमें चाहिए ये जुडिशरी में जाए, कोर्ट में जुडिशरी से सुने। और इसमें कई चीज़ें जो ये बहुत इसमें खामियां हैं, तो इसी আমরা আরো শুনে নেব যে এই বিল নিয়ে তাদের আপত্তির কথাটা। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कई शर्तें इन्होंने रख दी हैं। उसमें एक जो रखा है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर से किसी तरीके का विवाद होता है तो आप किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। आपके लिए एक अधिकारी नियुक्त है, परगना अधिकारी जिसे एसडीएम बोलते हैं हमारे यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ जा सकते हैं और किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको मालूम है सर, किसान की बात एसडीएम डीएम कितनी सुनता है, और जब उद्योगपतियों जिनका पूरी गवर्नमेंट पे कब्जा है वो लोग, उनके खिलाफ हम शिकायत करेंगे तो एसडीएम डीएम हमारे किसान की कहाँ सुनेगा, वो तो उन्हीं की सुनेगा। तो हम एक तो ये है कि इसे कानूनी ये प्रावधान हमें अधिकार दिया जाए कि अगर हमारा कोई विवाद होता है उससे कॉन्ट्रैक्टर से, हम कोर्ट जा सकें। और दूसरा जो एमएसपी खत्म कर रहे हैं उस पर ये लिखित में दिया जाए, अगर इस एमएसपी से कोई नीचे खरीदता है इस पे एक दंड, मतलब कानूनी एक ऐसा जुर्माना लगाया जाए अगर इससे नीचे कोई एमएसपी को लिखित कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग है। এই এমএসপি মানে হচ্ছে সরকার যে দামে ফসল কেনে, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। তো এই যে দামটা, এটা খালি সরকার কেনে, যখন বেসরকারি কেউ কেনে তারা এই দামের ধার ধারেন না, তারা নিজেদের দাম, তখন বাজারে যে দাম চলছে সেটা সবসময় এমএসপি থেকে অনেক নিচে হয়, সেই দামে কেনেন। তারা চাইছেন যেটা আইন করে এমন ব্যবস্থা করা হোক যাতে সবাইকে এমএসপিতে কিনতেই হবে। আমি একজন বয়স্ক কৃষকের কাছে যাব। भाई साहब, आपका क्या ये सरकार का ऊपर भरोसा नहीं है? जो ये आपका जो कानून जो पास हुआ वो हर बार ही बोल रहे जो इसको हम किसान का लाभ होगा। देखिए, किसान का क्या पूरे देश का ही भरोसा इस किसान सरकार से टूट चुका है, क्योंकि जब से ये सरकार आई है आप देख लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक इन्होंने झूठ ही झूठ बोले हैं, झूठ ही झूठ बोले हैं। इन्होंने 15 लाख का वादा, हर खाते में 15 लाख देंगे, काले धन का वादा, 2 करोड़ नौकरियां पर हर साल इन्होंने देने का वादा किया। मतलब इस अब ये जब से ये किसी भी नए राज्य में इन्होंने सरकार बनानी होती है, एक नया झूठ लेके आ जाते हैं और नया बिल लेके आ जाते हैं। अब ये कोविड के दौर में आप सोचिए कि कोविड के दौर में इस बिल को लाने की पहली तो बात जरूरत क्या थी। बाकी पूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान ही आंदोलन कर रहा है, हर किसी का इस सरकार से भरोसा टूट चुका है। तो अब किसान कैसे भरोसा कर लेंगे, क्योंकि किसान अब सोया हुआ किसान तो रह नहीं गया, किसान के बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, अब पुराना किसान नहीं रह गया। अब किसान ने बिल को पढ़ा है, जागरूक बच्चों ने अपने बाप को समझा दी है ये चीज़ कि इसी, आप देखिए, खुद देखिए कि यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे नौजवान भी हैं, बाप और बेटा इकट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो पूरे देश के किसी किसान का या किसी वर्ग का भरोसा इस सरकार पे नहीं रहा। आप लोग कितना दिन रहेंगे यहाँ? आप लोग कितना दिन यहाँ रहेंगे? जब तक ये मांग नहीं मानी जाती, सीधा अनलिमिटेड। आप लोग कितना दिन का ये खाना वगैरह कितना दिन? जी, गुरु के घर में खाने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जहाँ बैठते हैं ना जंगल में भी, वहाँ भी खाना प्रोवाइड है। ये खाने की हम लोगों की ट्रालियां भरी खड़ी है नीचे, अभी यहाँ के गुरुद्वारों से आ रहा है, राशन हमारे पास है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका पैसा कहाँ से फाइनेंस हो रहा है। अरे भाई, हमने कभी पूछा कि तुम्हारी रैली का पैसा कहाँ से फाइनेंस होया? उनका तो आप एहसान उतारते उतारते बूढ़े हो जाओगे, हमें भी भेज दोगे तो कॉर्पोरेट जगत का एहसान नहीं उतरेगा। पैसा वो फाइनेंस करते हैं, हम तो गेट टुगेदर करते हैं। हम जेबों से पैसा, एक गाँव से ट्राली चलेगी तो उस गाँव से अन्न का भंडार भर के चलेगी। सबके घर में भंडार रहता है, सब अपना अन्न साल भर का रखते हैं। तो हम यहाँ रह के खाएं या वहाँ रह के खाएं, हमने अपना ट्राली में लादा। दाल बाजार से लेनी है, मोल लेनी है, तो हम लोगों ने पैसा कर देना है, तो कहाँ प्रॉब्लम? तो भाई साहब, आपको जो सरकार के चाहते हैं अभी ये खत्म हो जाए आपका जो, तो आपका क्या डिमांड सबसे कम जो इसमें हम कर लेंगे, इसके हम समझौता कर लेंगे? देखिए, ये तो मैं कह ही नहीं सकता, ये तो हमारे 35 आदमी जो नियुक्त हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो जीरो में कर लें, वो सारा ले लें, वो बीच में कहीं नेगोशिएशन हो जाए, वो उनका काम है, हमारा नहीं है। वो जो कहेंगे हम उसको फॉलो करें। अभी तक क्या ये जो कानून है इसको खत्म करना चाहिए? नहीं, कायदे से तो खत्म होना चाहिए। आप नया लेके आओ ना, हमसे बात करो, किसान जथेबंदी बैठी ना, आप इसे एक बार फिनिश करो,
उसके बाद नया लेकर आओ ना, हमसे बात करो, हम बताएंगे आपको। हमारे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो बताएंगे आपको। हमारे किसान जथेपतियों के हेड बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। हमारे पास शास्त्री हैं, बताएंगे। वकील, ऐसा तो नहीं ना है कि किसान वो खेत में जो काम कर रहा है, सारा दिन हल चला रहा है, धोती पहन के कपड़े पटे, वो किसान नहीं है। सब तरह का किसान है, पढ़ा लिखा किसान है। এখন আমরা একটু দেখে নেব যে নিরাপত্তার অবস্থাটা এখানে তাদেরকে আর এগোতে দেওয়া হচ্ছে না, অর্থাৎ দিল্লিতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কৃষকরা যেটা কথাটা বারবার করে বলছেন যে এই সরকারের ওপর থেকে তাদের যে আস্থাটা সেটা ভেঙে গেছে, তারা আর ভরসা করতে পারছেন না, কারণ সরকার একটার পর একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটা পালন করেনি। দ্বিতীয়, যে কৃষকদের চরিত্র বদল হয়ে গেছে, তারা আর আগের মতো নেই যে তারা নিরক্ষর কিষাণ, লেখাপড়া জানেন না, এরকম নয়। তারা লেখাপড়া জানেন, তারা সবাই সচেতন। বিশেষ করে যে তরুণ যে প্রজন্ম এখন যারা বেড়ে উঠছেন, তারা এই বয়স্কদের বুঝিয়েছেন যে এই আইন অত্যন্ত খারাপ আইন এবং এই আইন মানা যায় না। भाई साहब, ये जो चल रहा है, जो आपका जो आंदोलन, तो आपको तो दिल्ली में पहले आप कोशिश था जो दिल्ली के अंदर घुसेंगे, अभी तो दिल्ली के अंदर आपको जाने नहीं दे रहा है, तो आप क्या यहाँ ही खड़ा रहेंगे? नहीं, सरकार हमारी मांगे मान ले, हमें यहाँ भी खड़े होने में क्या अच्छा लग रहा है। हम अपने काम धंधे छोड़ के आए हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे हैं, और ये जो बिल है किसान सरकार इसको वापस ले और हम अपने घरों को जाएं। और ये जो गोली के बल पे, बंदूक के बल पे, लाठी के बल पे जो लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, मेरे हिसाब से भारत की जो अपने नेचर है, जो भारत का ब्लड है, जो भारत का, वो उसे कभी स्वीकार ना करेगा। शायद अमित शाह जी या इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा होगा भारत का, जो ये मतलब कि इस तरीके से गोली के बलबूते अपना राज करना चाह रहे हैं। इनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि भारत के लोग किसी भी कीमत पे बंदूक की नोक पे किसी तानाशाह को गद्दी पे नहीं बैठने दे सकते। आपको एक चीज बताइए, अभी तो रात में काफी ठंड हो जाते हैं, तो आप लोग कहाँ सोते हैं? हम यही इसी जगह पे जहाँ आज मंच लगा हुआ है, इसके ऊपर तिरपाल लग जाती है, नीचे आग जला लेते हैं, तिरपाल के बाहर कुछ लोग लेटे, यही ठंड में हम लेटे रहते हैं। 200 किलोमीटर दूर से हम यहाँ पे आए हुए हैं। आज चौथा पांचवा दिन है हमारा। कोई ट्राली में लेट जाता है, कोई ठंड में बाहर वैसे ही लेटा रहता है। क्या करें, अब मजबूरी है किसान की। अब वैसे भी तो किसान का फ्यूचर कुछ बचा नहीं है, किसान के बच्चों का कुछ फ्यूचर जब बचा ही नहीं है, तो किसान तो ये सोच के बैठा हुआ कि अब क्या करें, भी मरना तो है ही, ठंड से मर जाए या इनकी गोली से मर जाए या अपने वैसे ही फांसी लगा के मर जाए। कितने किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं आप जब से ये सरकार आई है। पहले की सरकारों को भी हमको ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी सरकारें थी, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल। और ये क्या आपके लिए आर पार का लड़ाई है? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। और किसान आ रहे हैं, जो लोग घर में हैं, जिन तक ये बातें पहुंच रही हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वो खुद ट्रालियां भर भर के आ रहे हैं। बाकी कुछ किसान जो है बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे। अब इन्होंने ट्रेनें जो है वो रोक नहीं रहे, ये लोग स्टेशन पे ट्रेन रोकनी बंद कर दी है इन्होंने, किसान पहुंचे ना। रास्ते में जगह जगह मिलिट्री लगा दी है, पुलिस लगा दी है, जो बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ठीक है, उनको पहुंचने में दिक्कत हो। हाँ जी, ওরা যেটা বলছেন যে এই যে জায়গায় এরা এসছেন, এখানে রাত্রির বেলায় এখানেই শুচ্ছেন। প্রচণ্ড ঠান্ডা কিন্তু দিল্লিতে রাত্রিরে, এখন এই গরম রোদ্দুর আছে বলে এখন একটু বাঁচোয়া। রাত্রিরের দিকে তাপমাত্রা 11, 10, 9, 8 এরকম জায়গায় নেমে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা এখানেই এই জায়গায় এই জমিতে শুতে হচ্ছে। মাথার ওপর একটা ত্রিপল লাগিয়ে দিচ্ছেন বা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন, জ্বালিয়ে নিচ্ছেন। তো এই যে জায়গাটায় এত কষ্ট করে তারা এসছেন, কারণ তারা এখন একটা হেস্তনেস্ত করতে চান বিষয়টার। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর পুলিশ প্রহরা রয়েছে, প্রচুর পুলিশ আছে। যদিও আন্দোলন পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ, কেউ কোনো রকম নিয়ম ভঙ্গের কোনো চেষ্টা করছেন না, কিন্তু পুলিশের কোনো অভাব নেই। রাশি রাশি পুলিশ, বন্দুকধারী পুলিশ, লাঠিধারী বন্দুকধারী পুলিশ। এবং এই যে জায়গাটা দেখছেন, এখন একটা রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে যেখানে কৃষকরা বিক্ষোভ করছে, বাকি দুটো রাস্তা খালি আছে। দিল্লি থেকে গাড়িটা আসতে পারছে, কিন্তু দিল্লিতে যাওয়ার যে রাস্তাটা সেটা প্রধানত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই যে কৃষকরা, আপনারা যদি আমাদের ক্যামেরা যায় পৌঁছয়, তাহলে দেখতে পাবেন যে ট্রাকে করে, ট্র্যাক্টরে করে তারা নিজেদের বাহন নিয়ে এসছেন। তারা এখানটায় জল রেখেছেন, নিজেদের খাবার রেখেছেন এবং সেইভাবে
তারা নিজেদের পয়সা দিয়ে, এখানে কেউ স্পন্সর, তারা যেটা দাবি করছেন কোনো স্পন্সরার নেই, তারা নিজেরা দাবি করছেন। এখানটা একটা লাল পতাকা দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ বামপন্থী কৃষক ইউনিয়নও এই আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হয়েছে, তারা রয়েছে এখানে। আমরা যেখানে এসেছি সেটা দিল্লির একটা সীমানা, এবং এরকম দিল্লির যতগুলো সীমানা আছে ততগুলো সীমানায় এই ধরনের বিক্ষোভ চলছে, অর্থাৎ কৃষকরা দিল্লিকে ঘিরে ফেলেছেন, দিল্লি ঘিরে তারা আন্দোলন করছেন, এবং এই যে আন্দোলন তাদের, এটা থেকে তারা যাচ্ছেন না, এবং প্রতিদিন নতুন নতুন করে লোক আসছেন। ভাই সাहब, आप तो ये जो संघर्ष चल रहा है आप इसमें शामिल है, तो हमें ये चीज़ बताइए जो अभी डेडलॉक हो गया, अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ रहा है, 2 दफ़ा जो मीटिंग हुआ था वो कुछ काम में नहीं आया, तो अभी कैसे इसका हाल होगा? हम हाल तो निकलवा के जाएंगे। हम एक सरकार से पूछना चाहते हैं, ये यहाँ बयान दे रहे हैं यहाँ बैठे केंद्र सरकार में भी, हम किसानों का भला कर रहे हैं, आमदनी दुगनी कर रहे हैं, हमारे से भी पूछें। कभी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये कांग्रेसी हैं कि ये सपाई हैं कि ये बसपाई। हम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला से आए हैं, हमारे धान 800-900 रुपये मंडी का रेट धान बिक रहा है, तो ये कह रहे हम खुला बाजार में किसान को छोड़ दिया है, जहां मर्जी बेच सकता है। हमें थोड़ी सी ये जानकारी दे दें, हम कहां खुला बाजार असम में ले जाएं, हम तमिलनाडु में ले जाएं, हम कश्मीर में ले जाएं, हम गुजरात में ले जाएं, जहां मुझे इनका जो एमएसपी इनका बनाया है, हम कहते हैं हमें वो ही कहीं ना कहीं मिल जाए, जाके हमारा किराया निकाल के, तो हमें हमारा एमएसपी ही दिलवा दे और हमें बता दे ये यहाँ बैठे हमारी आमदनी दुगनी कर रहे हैं। मेरे से पूछें भी आपके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है कि आमदनी दुगनी कर रहे हैं, यहाँ बैठे अपनी कंपनी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो भाई साहब, अभी खेत में तो फसल हो गया, अभी कटाई का टाइम आ गया, तो आप लोग कितना दिन यहाँ बैठ सकते हैं? हम बैठे रहेंगे, हम तो वैसे घर में भी मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, हमारे ऊपर कर्ज चढ़ रहे हैं, हमें यहाँ कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे। अपना हक मांगने हम आए, हम लड़ाई लड़ने आए। हमें आज 1 सप्ताह हो गया मुझे घर छोड़े हुए, और हम बैठे डटे रहेंगे, हम कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे, अपना हक लेके निकलेंगे। हम इनसे भीख मांगने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं। এবং এইখানেই একটা চাপে পড়েছে সরকার, কারণ কৃষকরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য বদ্ধপরিকর, তারা জমি ছেড়ে যাবেন না। এইভাবে দিল্লি ঘিরে ফেলেছেন বলে সরকার কিছুটা নরম হয়েছে, কিন্তু এখনো পুরো দাবি মানতে রাজি হয়নি। তারা বলেছে যে আমরা আইনের কিছু সংশোধন করতে রাজি, কৃষকরা বলছেন যে আইন বাতিল করো। এবং এইভাবে যে কষ্ট করে নিজেদের দমে নিজেদের জোরে জায়গা থেকে তারা এই আন্দোলনটা চালাচ্ছেন, তাতে নিঃসন্দেহে সরকারের ওপর চাপ ভীষণভাবে বেড়েছে। এবং এই চাপের ফলেই দেখা যাচ্ছে যে গত 6 বছর ধরে যে মোদী সরকার যে কোনো আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন একটা মনোভাব নিয়েছিল, তারা কিন্তু এক্ষেত্রে মনোভাব কিছুটা নরম করতে বাধ্য হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে তারা ঠিক যাবে, কতটা দাবি মানবে, কৃষকরা সেই সরকারের সেই সমঝোতা সূত্র মানবে কিনা, সেটা পরের প্রশ্ন। আবার কালকে বৈঠক আছে, সেই বৈঠকে ঠিক হতে পারে বা তারপরেও ঠিক হতে পারে, কিন্তু যে বার্তাটা যাচ্ছে সেটা মোদী সরকারের পক্ষে আদৌ ভালো নয়। তারা চাপে আছেন, কারণ দেশের কৃষকরা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, দেশের কৃষকরা রেগে গেছেন। এই বার্তাটা যে যাওয়া, সেটা সরকারের কাছেও ভালো নয়, বিজেপির কাছেও ভালো নয়, সেজন্যই তাদের ওপর চাপ বাড়ছে। আপাতত এই ফেসবুক লাইভ এ পর্যন্তই, আবার হয়তো ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের মুখোমুখি হব। এখন এ পর্যন্তই। ক্যামেরায় সমন্তক এবং আমি গৌতম আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ 22 23 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 18 20 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ।